Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, on behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagha representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, today we are going to talk about the most important topic, that is reorder level and reports in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and development. We are also into the multiple softwares. First is Tally Prime, second is SAP Business One, third is Bittrex 24 CRM, and fourth is Skill India. So moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be conducted by Ms. Anam. So Anam, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Miss Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, Anga, thank you very much. Okay. Hearty welcome all of you. So now I request Anam and Sonali to move ahead with your presentation. Okay, ma'am. Thank you. Hello, all. Very good evening to one and all present here. Myself, Miss Anam Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, next slide, please. On behalf of the management and the entire team, I would like to welcome all the participants present here. So, coming towards our today's most interesting topic, that is reorder level and reports in Tally Prime. Let's move to the introduction part. So next slide, please. Tally Prime has the feature of reorder level, which indicates the quantity of stock beyond which the stocks have to be replenished. Reorder level feature आपको शो करता है क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में से कौन से स्टॉक replenished करने हैं. By defining the reorder levels and reorder quantities in Tally Prime, you can ensure that you never run out of stock. Tally Prime में reorder level and reorder quantities define करके आप ये ensure कर सकते हैं that you never run out of stock. This report displays the group-wise summary of the available stock items with the number of purchase order pending, sales order pending, sales order due, and so on. Group-wise summary of available stock items, number of purchase and sale order pending and sale order due, etc. आपको रिपोर्ट में डिस्प्ले होता है. Moving to the next slide. Sir, next slide, please. Okay. Now, here comes the important information of reorder status report. You can specify the minimum order quantity and reorder quantity as per your inventory requirement. आप minimum order and reorder quantity specify कर सकते हैं as per your inventory requirements. You can also view the actual stock position in the reorder actual status report and take the required decisions regarding the stock reorder status report. स्टेटस रिपोर्ट में आप एक्चुअल स्टॉक पोजीशन व्यू कर सकते हैं एज वेल एज आप रिक्वायर्ड डिसीजंस ले सकते हैं रिलेटेड स्टॉक. यू कैन सेट द रीऑर्डर लेवल बाय डिफाइनिंग ओनली द रीऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. आप रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं रीऑर्डर एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट करके. द सेकंड कम्स reorder quantity and minimum order quantity with advanced parameters to meet the dynamic consumption patterns. Reorder and minimum order quantity आप advanced parameters के साथ set कर सकते हैं to meet the dynamic consumption patterns. Okay, so now reorder quantity and minimum order quantity. Or open the reorder level master
for the required stock item, stock group or category and configure the screen for simple reorder and minimum order quantities. Enter the reorder and minimum order quantities. Tally Prime में आपको reorder level master open करना होगा for the stock item, group और category and then आपको screen configure करना होगा for simple and minimum order quantities by entering the quantity. Okay, so now we'll see reorder quantity and minimum order quantity with advanced parameters. Open the reorder level master and specify the reorder quantity advanced parameters. Tally Prime में आपको reorder level master open करना होगा and reorder quantity advanced parameters के साथ specify करना होगा. The advanced parameter for reorder level help to calculation of quantity to be reordered based on the total consumption in the past for a given period. Advanced parameters आपको help करते हैं for calculation of a quantity to be reordered and it is based on the total consumption in past for a given period. So this was all about the theoretical part of reorder level and reports in Tally Prime. I end here from my side. Now it's time for the live demonstration. So I request Ms. Sonali to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you so much, Anam ma'am. It was a nice presentation. Hello everyone. Myself is Sonali Shizwar. I am here to present to the live demonstration record level and reports in Tally Prime. Just wait. I will share my screen. Sir, my screen is visible? Yes, Sonali. Oh, thank you. So, जैसे कि हमने अभी देखा था थेरोटिकल पार्ट में कि हम रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं टैली में. सो अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट में यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ स्टॉक आइटम, जो कि मैं यहाँ पे जाऊंगी क्रिएट में, मास्टर के क्रिएट में स्टॉक आइटम. यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ स्टॉक आइटम शर्ट. अंडर ग्रुप मेरा रहेगा प्राइमरी ही. यहाँ पे मैं डाल देती हूँ यूनिट्स नंबर्स. देन इसको मैं कर देती हूँ सेव. सेकेंड मेरा स्टॉक आइटम रहेगा टी शर्ट. यहाँ पे ग्रुप मेरा प्राइमरी ही रहेगा. यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देती हूँ नंबर्स में. देन इसको मैं कर देती हूँ सेव. ये हो गए मेरे स्टॉक आइटम क्रिएट. देन अब हमें क्या करना है, जो अपना रीऑर्डर लेवल है वो सेट करना है. तो यहाँ पे मैं मास्टर में जाऊंगी. मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे जाना है मुझे अल्टर में. अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगी शो मोर में. शो मोर में आप जैसे ही जाते हैं वहां पे आपको शो होगा रीऑर्डर लेवल. तो रीऑर्डर लेवल आप सेट कर सकते हैं स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज एंड स्टॉक कैटेगरी वाइज. तो यहाँ पे मैं अभी हम अभी सेट करेंगे स्टॉक आइटम वाइज. तो देखिए मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ. यहाँ पे जैसे आप प्री ऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम वाइज को सेट करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी स्टॉक आइटम की लिस्ट शो हो जाएंगे. यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे शर्ट. तो ये देखिए यहाँ पे हम रीऑर्डर लेवल में दो लेवल यूज कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा लेवल है सिंपल, सेकंड हमारा लेवल है एडवांस लेवल. तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल जो है, तो सिंपल लेवल में क्या होता है, विदाउट पीरियड एंड कैटेरिया ये हम सेट कर सकते हैं वो मैन्युअली यूज करने के लिए. और सेकंड जो हमारा है एडवांस लेवल, वो रहेगा विथ पीरियड एंड कैटेरिया हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे एडवांस लेवल पे. तो हम फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे सिंपल रीऑर्डर लेवल. तो यहाँ पे हमें शॉर्टकट कीज दी है सिंपल रीऑर्डर के लिए. यहाँ पे मैं करती हूँ अल्टियस यहाँ पे. देन मिनिमम क्वांटिटी के लिए सिंपल लेवल मेरा यूज होगा, तो मैं करूंगी अल्ट वी. तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल लेवल जो यूज कर रहे हैं रीऑर्डर के लिए, यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी में डाल देती हूँ. सपोज मेरा स्टॉक आइटम अगर 10 नंबर्स के बिलो जाता है तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस बताएगा मिनिमम ऑर्डर करने के लिए. तो यहाँ पे मैं मिनिमम ऑर्डर मेरा सेट कर देती हूँ 15 नंबर्स. देन इसको मैं कर देती हूँ सेव. ये हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल सेव. अब हम जाएंगे वाउचर्स में एंट्री करने के लिए. तो यहाँ पे हमें करना है परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट. हम यहाँ पे जाएंगे
ऑदर्स वाउचर्स में। ऑदर्स वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो होगा जो कि एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे हम शो इनएक्टिव पे जाएंगे। यहाँ पे हम एक्टिव करेंगे परचेस ऑर्डर को, जिसका शॉर्टकट कीज है कंट्रोल F9। ये होगा हमारा परचेस ऑर्डर एक्टिव। हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर की एक एंट्री पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पार्टी प्रिया एजेंसीज, इसको कर देती हूँ एंटर। देन हमारे यहाँ पे ऑर्डर नंबर सेट हो जाएगा, परचेस अकाउंट। यहाँ पे स्टॉक आइटम लेते हैं हम शर्ट, तो यहाँ पे देखिए मैं क्वांटिटी लेती हूँ यहाँ पे 15 नंबर्स, सॉरी 10 नंबर्स। यहाँ पे उसका रेट लेती हूँ 200 रुपीज। देन मैं अभी क्या करती हूँ, एंट्री को कर देती हूँ सेव। अब हम देखेंगे इस एंट्री का इफेक्ट जो है हमें कैसे बताता है रीऑर्डर के रिपोर्ट्स में। हम अभी शॉर्टकट कीज यूज करेंगे अल्ट जी। गो टू में जाएंगे, गो टू में जाने के बाद यहाँ पे हमें देखना है रीऑर्डर स्टेटस। तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, जो कि हमारा स्टॉक ग्रुप है प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर हमारा है आइटम शर्ट। यहाँ पे देखिए मेरा क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरे पास क्लोजिंग कुछ नहीं था। यहाँ पे मैंने अब भी परचेस ऑर्डर जो रेस किया है 10 नंबर्स का, नेट अवेलेबल है मेरा 10 नंबर्स, रीऑर्डर लेवल है मेरा 10 नंबर्स, यानी एंड मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी 15 नंबर्स। 10 नंबर से बिलो अगर मेरा स्टॉक जाता है तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 15 नंबर्स का, जो अब हम देखेंगे एंट्री लेवल पे। तो हम अब अभी जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं ये F9 प्रेस करूंगी, परचेस एंट्री पास कर दूंगे। यहाँ पे देखिए मैं अभी करती हूँ प्रिया एजेंसी, पार्टी ले लेती हूँ। यहाँ पे परचेस अकाउंट, यहाँ पे आ जाता है मेरा स्टॉक आइटम। यहाँ पे मैंने ऑर्डर की थी 10 नंबर्स की, बट सामने से हमें मिल रहा है 80 नंबर्स। तो टू नंबर्स जो है मेरी टू क्वांटिटी अभी तक पेंडिंग में है, तो ये एंट्री कर देती हूँ मैं सेव। ये सेव करने के बाद अब हमें देखना है कि रीऑर्डर लेवल के रिपोर्ट में इसका इफेक्ट कहाँ बताता है और किस लेवल पे हमें शो करता है। तो हम जाएंगे अल्ट जी, शॉर्टकट की, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस में प्राइमरी। देखिए यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, परचेस मेरा अभी क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 8 नंबर, जो कि मेरे पास अभी 2 नंबर्स जो है 2 क्वांटिटीज अभी तक पेंडिंग में है। मेरा नेट वैल्यू ये है। यहाँ इसके बाद सेल्स एंट्री कुछ पास नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे रीऑर्डर 10 ही बता रही, ऑर्डर प्लेस नहीं बता रही। देन हम अब आगे करेंगे, इसके अगेन सेल्स एंट्री रेस करेंगे। अभी मैं जाती हूँ वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद मुझे सेल ऑर्डर एंट्री रेस करनी है। यहाँ पे मैं जाऊंगी अदर वाउचर्स में। अदर वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगी शो इन एक्टिव में, जो कि मुझे सेल ऑर्डर जो है उसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पे मैं जाऊंगी, इसको कर दूंगी एक्सेप्ट। देन ये हो गया मेरी एंट्री सेव। यहाँ पे हमें सामने वाली पार्टी से ऑर्डर आया है कि उन्हें अभी हमें ऑर्डर पास करना है। देन हम अभी करेंगे एंट्री। यहाँ पे लेती हूँ मैं लेटेस्ट एंट्री पास कर देती हूँ। देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सेल अकाउंट, जो कि मेरे पास टी शर्ट से 8 नंबर्स अवेलेबल, 8 नंबर्स की उनके पास क्वांटिटी आ जाती है। उसका मैं रेट देती हूँ उनको 200 रुपीज। देन यहाँ पे मैं ये एंट्री कर देती हूँ। हम अब इसका इफेक्ट देखेंगे रिपोर्ट लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट लेवल पे जाना है, डिस्प्ले में आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं जाऊंगी डिस्प्ले रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, यहाँ पे है रीऑर्डर स्टेटस, यहाँ पे मेरा ग्रुप, यहाँ पे आएगा प्राइमरी। सो देखिए यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 8 नंबर्स, परचेस ऑर्डर मेरे पेंडिंग पे थे 2 क्वांटिटीज। सेल्स ऑर्डर जो है मैंने अभी सेल्स ऑर्डर मेरी है ड्यूज में 8 नंबर्स, मेरे पास नेट अवेलेबल है 2 नंबर्स। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है रीऑर्डर लेवल मेरा मैंने सेट किया था 10 नंबर्स का, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉल में हमें शो हो रहा है 8 नंबर्स, यानी कि मेरे पास ओनली 2 अवेलेबल से जो परचेस ऑर्डर में पेंडिंग है। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक ऑर्डर टू बी प्लेस पे बताएगा 15 नंबर्स। तो शॉर्ट फॉल की एंट्री यहाँ से कब हट जाएंगी, जबकि हम आगे एंट्री सेव कर देंगे। तो मैं आगे क्या कर देती हूँ, एक सेल की एंट्री पास कर देती हूँ।
यहाँ पे मैं जाऊंगी F8, यहाँ पे ले लेती हूँ पार्टी, ये पार्टी को मैं सेल कर देती हूँ। ये मेरा स्टॉक आइटम जो है सेल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा टी शर्ट्स। यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर जो रेस करी थी वो सेल ऑर्डर नंबर, देन मैं इसको कर देती हूँ सेव। तो हम अभी रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे इसका इफेक्ट। रीऑर्डर स्टेटस प्राइमरी, यहाँ पे देखिए परचेस ऑर्डर मेरा 2 है, सेल ऑर्डर मेरा कुछ भी नहीं है, यानी कि मैंने सेल एंट्री अभी जो पास करी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। शॉर्टफॉल में जो कि मेरे पास जो एंट्री थी, मतलब जो शॉर्टफॉल था 8 नंबर्स का, जब मैं परचेस के एंट्री पास करूंगी तब मुझे यहाँ पे शो होगा वो यहाँ पे शॉर्टफॉल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर रेस करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जाऊंगी वाउचर्स में, परचेस कैश लेती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता है परचेस अकाउंट, यहाँ पे आ जाता है मेरा बिल। देखिए अब हम जाएंगे अल्ट जी में, रीऑर्डर लेवल स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे टी शर्ट की क्वांटिटी हो गई यहाँ से, शॉर्टफॉल जो था यहाँ से रिमूव हो गया है और ऑर्डर प्लेस हो चुकी है। यहाँ पे जो थी बता रहे थे अमाउंट का, सॉरी क्वांटिटी, यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। तो अब अगर हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास अवेलेबल सेल्स कितना है या हमारे पास सेल ऑर्डर कितना है, वो रिपोर्ट्स भी हम अभी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो रिपोर्ट लेवल पे एक बार बता देती। यहाँ पे मैं एक बार एंट्री पास कर देती हूँ सेल ऑर्डर की, यानी कि आपको रिपोर्ट्स में पूरा प्रॉपर बताएंगे। यहाँ पे मैं जाती हूँ सेल ऑर्डर में, यहाँ पे मैं करती हूँ एक एंट्री पास, तो यहाँ पे सेल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे लेती हूँ शर्ट्स, यहाँ पे डालती हूँ मैं 5 नंबर्स सेल ऑर्डर की। देखिए, तो देखिए रिपोर्ट्स में इसका इफेक्ट कहाँ पे बताता है, वो इफेक्ट भी बता देती है और स्टॉक समरी में जो रिपोर्ट्स आता है वो रिपोर्ट्स भी अब हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा परचेस ऑर्डर है 20 नंबर, सेल ऑर्डर पेंडिंग में 5 नंबर्स, नेट अवेलेबल है 7। तो अब हम ये स्टॉक समरी में भी चेक कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अल्ट जी, यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टॉक समरी में जाके हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक बार एंट्री पास कर देती हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे ऑटो कॉलम में आप जाएंगे अगर यहाँ पे, तो ऑर्डर एंड स्टॉक आइटम अगर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको शो होगा शर्ट का हमारे पास क्वांटिटी कितना है क्लोजिंग बैलेंस में, हमारा ऑर्डर प्लेस कितना है, सेलेबल स्टॉक कितना है, परचेस ऑर्डर कितना है, एंड नेट्स हमारे पास स्टॉक अवेलेबल कितना है। यहाँ पे देखिए हर एक कॉलम आपको शो होता है। यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, रेट का कॉलम हटा देती हूँ, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे आपको रिपोर्ट शो हो जाएगा। इसको नो कर देती हूँ, इसको सेव करती हूँ। देखिए मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल कुछ भी नहीं है, सेल्स ऑर्डर जो था मेरे पास 5 नंबर्स अवेलेबल है, सेलेबल में 5 नंबर से वो माइनस में है, यानी कि परचेस ऑर्डर मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो मैंने सेल ऑर्डर डाली थी वो मेरा 5 नंबर से यहाँ पे बता रहे। परचेस ऑर्डर में मेरा 12 नंबर से वो आउटस्टैंडिंग में है, वो इतना बताते हैं, और नेट स्टॉक में ये है। तो इस तरह से हम सिंपल लेवल ऑर्डर यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एडवांस लेवल रीऑर्डर। एडवांस लेवल रीऑर्डर देखने के लिए अब हमें जाना है मास्टर में, अल्टर में, देन हम जाएंगे अभी शो मोर में। शो मोर में जाने के बाद अब हमें जाना है रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम। यहाँ पे मैं लेती हूँ टी शर्ट। यहाँ पे देखिए मुझे एडवांस रिकॉर्ड लेवल यूज करना है, तो मैं यहाँ पे एडवांस रिकॉर्ड लेवल की शॉर्टकट कीज यूज करूंगी अल्ट एस, देन एडवांस मिनिमम क्वांटिटी के लिए मैं यूज करूंगी अल्ट वी। देखिए
यहाँ पे एडवांस लेवल कब यूज होता है, जो कि ऑटोमेटिक अपना ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, इसलिए एडवांस लेवल यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, एक तो 10 नंबर्स के बिलो अगर मेरा स्टॉक हो गया तो वहां पे ऑर्डर प्लेस के लिए ऑटोमेटिक बताएगा ये। या आपका अगर डे वाइज आप लेते हो, यहाँ पे डे वाइज या ईयर वाइज आप पीरियड लेते हो, तो पीरियड के हिसाब से आप डे वाइज भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मंथ वाइज भी डाल सकते हैं, वीक वाइज भी डाल सकते हैं और ईयरली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेती हूँ मैं डे वाइज, मतलब मेरा 2 डेज में जितना सेल होगा उतना ऑटोमेटिक सेल मेरा वहां पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे बताएगा। यहाँ पे लेती हूँ मैं 2 डेज सेम, यहाँ पे लेती हूँ मैं हायर एंड इसको कर देती हूँ मैं सेम। तो हम अभी जाएंगे वाउचर लेवल पे। मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक वाउचर्स की एंट्री पास, परचेस ऑर्डर, देखिए प्रिया एजेंसीज, इसको कर देती हूँ सेव। यहाँ पे आएगा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट्स में टी शर्ट की क्वांटिटी लेती हूँ मैं 20 नंबर्स, रेट लेती हूँ इसका 250 रुपीज, मैं इसको कर देती हूँ सेव। ये हो गई मेरी परचेस ऑर्डर। देन मैं इसके अगेंस्ट एंट्री पास करूंगी परचेस की। वाउचर्स में जाके परचेस एंट्री पास करनी है, परचेस एंट्री पास करूंगी, यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे लेती हूँ परचेस अकाउंट, परचेस लेजर में यहाँ पे आएगा हमारा स्टॉक जो कि हमने ऑर्डर किया था 20 नंबर्स का, यहाँ पे है मुझे मिला है 50 नंबर्स। देन मैं इसको कर देती हूँ सेव। तो देखिए हम देखेंगे रिपोर्ट लेवल पे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी अल्ट जी में। अल्ट जी में जाने के बाद यहाँ पे मेरा रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस प्राइमरी, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग जो है अवेलेबल है 15 नंबर्स, परचेस ऑर्डर पास करिए 5 नंबर्स की, मेरे पास नेट अवेलेबल है 15 नंबर्स। अगर 10 नंबर्स के बिलो हो जाता है तो यहाँ पे मेरी ऑर्डर प्लेस हो जाएंगी 15 नंबर्स के लिए। देन मैं आगे करती हूँ एक सेल ऑर्डर रेस, वाउचर्स में जाती हूँ। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे अदर वाउचर्स, शॉर्टकट कीज आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल F8। देन यहाँ पे मैं लूंगी पार्टी, यहाँ पे सेल्स लेजर आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा टी शर्ट की सेल ऑर्डर मिले मुझे, ऑर्डर देनी है सामने वाले पार्टी को, तो 10 नंबर्स क्वांटिटी यहाँ पे डाल रही हूँ, ये कर देती हूँ इसको सेव। तो देखिए हम अगर रिपोर्ट्स में चेक करेंगे तो हमें रिपोर्ट्स में ये प्रॉपर तरीके से बताएगा। रीऑर्डर लेवल में हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे, स्टॉक ग्रुप रिकॉर्ड स्टेटस प्राइमरी। देन यहाँ पे देखिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था 15 नंबर्स, उसमें से 5 नंबर्स मेरा पेंडिंग में है, 20 मैंने ऑर्डर किया था। सेल ऑर्डर मेरी है 10 नंबर्स की, नेट अवेलेबल मुझे बता रहे 10 नंबर्स, और यहाँ पे शॉर्टफॉल कुछ भी नहीं बता रहे, यानी कि मेरे पास स्टॉक अभी तक अवेलेबल है। अगर मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता तो मुझे यहाँ पे शॉर्टफॉल में और ऑर्डर टू प्लेस में यहाँ पे मुझे शो करता है। तो इस तरह से हम टैली में यूज कर सकते हैं सिंपल लेवल ऑर्डर एंड एडवांस लेवल ऑर्डर, एंड उसके रिपोर्ट्स भी इजी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं टैली प्राइम में। तो अपने बिजनेस के लिए अगर आप स्टॉक यूज कर रहे तो स्टॉक के लिए हम इन्वेंट्री में जाके रीऑर्डर लेवल एंड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, इट इज डन माय साइड, थैंक यू। Okay, thank you, Anam and Sonali, for your wonderful presentation. So now it's a time for overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you, Anga, and thank you, teams. So, myself is Bhagwati Dhandaria. So, in this week, we covered reorder levels. So, reorder levels, why we have need a reorder levels? Actually, जब हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं अपनी टैली में, क्योंकि हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट्स होते हैं, वी आर रनिंग द रिटेल शोरूम, होलसेल और या मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट सेगमेंट में आप देखेंगे वहां पर नंबर्स ऑफ द स्टॉक आइटम इन्वेंट्री इतनी ज्यादा होती है कि उसको मैनेज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। और स्टॉक को मैनेज करना, और स्टॉक कितना हमने ऑर्डर दिया हुआ है, कितना हमारे पास ऑर्डर है,
और कितना हमारे पास सेल्स बिल बन चुके हैं। ये सभी चीजों को इस अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। कॉम्प्लेक्स में इसलिए बोलूंगा क्योंकि हम अगर कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है तो उस केस में हम एक अंदाज से, एक आइडिया से कि हमारे पास ठीक है इतनी क्वांटिटी है तो इतना ऑर्डर दे देते हैं। हमने कभी चेक नहीं किया, अगर मान लीजिए पहले से हमने ऑर्डर दिया हुआ था और हमने अगर चेक नहीं किया है, अगर हमने उसको मेंटेन नहीं किया कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में, रजिस्टर में, तो उस समय हमारे पास स्टॉक ओवर स्टॉक हो जाता है और बहुत से टाइम में हमारा वो पर्टिकुलर स्टॉक, अगर मान लीजिए एक्सपायरी वाला है, अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में हो, केमिकल्स में हो, वेरियस टाइप ऑफ द डिफरेंट, मान लीजिए फास्ट मूविंग आइटम में हो, तो वेरियस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपायर। तो उस केस में क्या हो जाता है कि हमारा स्टॉक आके पड़ा होता है, हमारा वेयर हाउस का कॉस्ट लगता है, हमारी फाइनेंशियल, जो मैं आपको फंड फ्लो की बात करूंगा, वो फंड फ्लो भी इफेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा स्टॉक कई बार एक्सपायर हो जाने के कारण हमारा बिजनेस लॉस हो जाता है। तो रीऑर्डर लेवल टैली प्राइम में आपने देखा जहां पर हम किसी भी लेवल पे हम उसको मेंटेन कर पाएंगे, परचेज लेवल पे, सेल्स के लेवल पे, और हमारे पास कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है कि आज हमारे पास कितना परचेज ऑर्डर पेंडिंग है, कितना हमने परचेज कर लिया है, कितना स्टॉक क्वांटिटी में है, और हमें रीऑर्डर किस पैरामीटर्स पे होना चाहिए। पैरामीटर सिंपल में ये था कि आज मेरे पास एक पर्टिकुलर स्टॉक 10 पीस से नीचे होगा तो 15 पीस की मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर होनी चाहिए। हर एक चीज का एक बॉक्स होता है, राइट। कोई एक आइटम है उसका बॉक्स होगा कि 15 पीस से नीचे ऑर्डर नहीं लेता है मेरा सप्लायर, तो उस केस में हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 15 पीस रखना है। तो उस टाइप से आप सेट कर सकते हैं कि मेरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। आपकी अपनी खुद की एक पैरामीटर्स होती है कि मुझे इतना स्टॉक तो अपने आप मेंटेन करना ही करना है। तो उस केस में भी आप वो चीज को मेंटेन कर पाते हैं कि चलो मिनिमम हम ये आइटम हमारी बहुत ज्यादा बिकती है, हमें एक सप्ते का स्टॉक हमें हमेशा होना चाहिए, चूंकि 2 दिन में स्टॉक मेरा आ जाता है, तो उस केस में मुझे एक सप्ते का स्टॉक रखना है, मतलब बफर साइड में। तो एक सप्ते में मेरा स्टॉक अगर 50 पीस बिकता है तो मेरा स्टॉक मिनिमम 50 पीस हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तो वो 50 पीस को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर रीऑर्डर लेवल, मतलब हमारा मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी हम 50 करते हैं, उसके बेस पे हमारा रीऑर्डर लेवल क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया सिंपल पैरामीटर्स, जहां पर हम परचेज ऑर्डर माइनस सेल्स ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक अवेलेबल्स, करेंट स्टॉक अवेलेबल्स, टोटल वैल्यू, एंड उसके सामने से हमारा रीऑर्डर लेवल। अगर शॉर्टफॉल है तो रीऑर्डर लेवल जनरेट होगा, अगर शॉर्टफॉल नहीं है तो हमारा ऑर्डर लेवल जनरेट नहीं होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पैरामीटर्स पर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब कई बार तो हम लोग अपने बेसिक पैरामीटर्स एक आइडिया से सेट कर लेते हैं, लेकिन कई टाइम में हमारे पास ये होता है कि हमारा लास्ट ईयर का परचेज सेल्स था, वो लास्ट ईयर में पर्टिकुलर मंथ में, मान लीजिए मानसून है, मानसून के टाइम में आपकी पर्टिकुलर आइटम काफी ज्यादा बिकती है। कोई एक मान लीजिए अम्ब्रेला की मैं बात करूं, अम्ब्रेला एक पर्टिकुलर टाइम में ही ज्यादा बिकता है। तो वो पर्टिकुलर टाइम में हमें लास्ट ईयर हमने कितना सेल्स किया था, उस सेल्स के बेस पे हमने अगर रीऑर्डर लेवल जनरेट करना है, अगेन दिस इज अ बिग डिफिकल्ट। अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है तो कई बार ओवर क्वांटिटी भी आप मंगा लोगे, या कई बार ऐसा होगा कि यू हैव नो आइडिया कि लास्ट ईयर कितना बेचा था, तो आप क्वांटिटी इतनी ही मंगाओगे कि वो आपकी 3 दिन में निकल जाएगी और यू अल्टीमेटली सपोर्टिंग द बिजनेस, आपके कस्टमर रिटर्न हो रहे हैं, और कस्टमर एक बार रिटर्न होता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से परचेज कर लेता है और यू आर लूजिंग द कस्टमर ऑल्सो। सो दिस इज अगेन बिग चैलेंज। तो इन दिस केस हमारे पास अगर लास्ट टाइम का, हमारे पर्टिकुलर सीजन और पर्टिकुलर टाइम का हमें ये पता है कि ये हमारा ऑर्डर हमने लास्ट ईयर में इतना क्वांटिटी हमने सेल किया था, और इस क्वांटिटी के बेस पे हमें इस हिसाब से ये ऑर्डर देने चाहिए इस पर्टिकुलर पीरियड में, और हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। टैली में इतने बेस्ट और वो काफी ट्रांसपेरेंसी और काफी स्मूथ ढंग से इसने बनाया है, जो कि आपने सोनाली ने आपको दिखाया कि आप ये चीजों को भी मिनिमम पैरामीटर्स अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑफ द डे वाइज, डे की सेल्स के हिसाब से, मंथ की सेल्स के हिसाब से, क्वार्टर, हाफ ईयर और व्हाटएवर ईयर, जो भी पैरामीटर्स वहां उन्होंने दिए, उसके बेस पे आप अपने रीऑर्डर लेवल को जनरेट कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से फायदे हैं, और फायदे क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका स्टॉक डंप नहीं होता,
आपके पास कैश फ्लो आपका डंप नहीं होता। आपका एक्सपायरी वाला गुड्स है तो वो गुड्स आपका एक्सपायर नहीं होता, जिससे आपकी कैपिटल लॉस नहीं होती। इसके अलावा आप ओवर क्वांटिटी आपके पास नहीं होती, जिससे आपका वेयर हाउस का जो कॉस्ट होता है वो भी आपका सेव हो जाता है। और कितना भी आप वेयर हाउस में मेंटेन करें क्वांटिटी, कितना भी स्टॉक मेंटेन करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर प्रोडक्ट पुराना होता है तो उसकी पैकेजिंग और उसके क्वालिटी एंड प्रोडक्ट पे भी काफी उसके इम्पैक्ट आते हैं। तो इसे डिपेंड ऑन द गुड्स, टाइप ऑफ द गुड्स की आज आयरन गुड्स है तो उस पर जंक लगती है, और वेरियस टाइप ऑफ, अगर आपका FMCG है तो वहाँ एक्सपायरी होती है, तो वेरियस टाइप ऑफ द गुड्स आ गया, तो वहाँ उसके बेस पे आप डिफरेंट बिजनेस में उसके डिफरेंट इम्पैक्ट आते हैं। तो ये चीजों से आप काफी हद तक यू कैन सेव योर टाइम, मनी एंड लॉसेस। So this is the overall idea of the reorder quantities, reorder level. So that's it from my side. So now it's over to you, Edgar. Thank you, sir, for your valuable time. Sir, can you please check if there are any questions in the chat? Yeah, Mr. Someone is raising the hand, so I will Okay. give the access to, Yes, sure, sir. they can discuss over here. Just a minute. Yes, I am giving the access to unmute yourself. आप अपने आप को unmute करें और आपके क्वेश्चन पूछें। हेलो। Hi. यस सर, मेरे पास एक्चुअली एक स्टॉक है, उसकी पैकेजिंग यानी कि डिफरेंट है, और यानी कि किसी का HSN अलग अलग होता है, तो हम यानी कि डिफरेंट स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। तो उस केस में ये क्लब होके दिखा सकता है उसका रीऑर्डर क्वांटिटी? आप ये बोलना चाहते हैं मल्टीपल स्टॉक को आप एक जगह करना चाहते हैं, मतलब हाँ। मल्टीपल HSN है, इसलिए एक आइटम के मल्टीपल HSN है, तो उस आइटम के मल्टीपल स्टॉक आप क्रिएट करते हो, फिर हाँ। मल्टीपल आइटम के मिनिमम ऑर्डर लेवल के बेस पे आप वो सिंगल आइटम का आप रीऑर्डर देखना चाहते हो, हाँ, क्लब करके। क्लब करके देखना चाहते हो। ये स्टॉक ग्रुप के थ्रू आप जा सकते हैं, अदरवाइज ये कस्टमाइजेशन के थ्रू जा सकते हैं। कस्टमाइजेशन? हाँ, कस्टमाइजेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। एक बार इसके लिए हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर आपको चैट में हमारे सपोर्ट नंबर्स भी हैं, और आप अगर राज्य लक्ष्मी में हमारे यहाँ जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं उस पर्सन के साथ, अकाउंट मैनेजर के साथ डिस्कस कर लीजिए, और आप अपना नंबर चैट बोट में डाल दीजिए, तो आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगी, आपका पूरा सिनेरियो समझा जाएगा, और सिनेरियो के बेस पे हम आपको उसको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। So is there any other questions, sir? No, right now we have not any questions. So peoples, I request you कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप अपने हैंड को रेज करें, मैं आपको अनम्यूट एक्सेस दूंगा ताकि आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ पाएं और हम आपको आंसर कर पाएंगे। Yeah, you can carry on. Okay, so if you have any questions, you can please update, or else you can connect to the account manager for any support and any requirement for this. So shall we wind up this session, sir? I think there are many things are there जो हम यहाँ information दे सकते हैं हमारे customers को. So Okay. in terms of the Rajya Lakshmi, we are providing the many type of the solutions, like हमने आपको जैसा अनगा ने भी बताया. So every month we are running some few offers for our valuable customers. तो इस महीने में हमारा WhatsApp का हमने एक मॉडल जो डेवलप किया है, उसके ऊपर काफी एक अच्छा ऑफर है, जहां पर आप 50% ऑफर के साथ आप उस WhatsApp मॉडल को ऑब्टेन कर सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं। टैली के साथ WhatsApp इंटीग्रेट हो जाता है, डायरेक्टली आप अपने इनवॉइस वगैरह एवरीथिंग यू कैन शेयर टू द योर कस्टमर्स। आपको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक यू कैन शेयर, क्लिक ऑन दैट एंड यू शेयर द PDF फाइल एंड मैसेजेस टू योर कस्टमर्स लाइक इनवॉइस एंड रिपोर्ट्स एंड आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ द थिंग्स। सेम वे आप आज टैली पूरे क्लाउड में यूज हो रही है, मल्टीपल लोकेशंस में आप यूज करना चाहते हैं तो आप टैली क्लाउड हमसे आप परचेस कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत से टाइप के बेनिफिट्स हैं, वहां पर प्राइसिंग में भी काफी अच्छे खासे ऑप्शन है। इसके अलावा मैं CRM की बात करूं तो यहाँ पर CRM में भी आप देखेंगे कि देयर इज ए CRM जो प्री सेल्स मैनेजमेंट, हमारे पास
सेल्स तो आ जाती है हमारे पास, कस्टमर जो एग्जिस्टिंग है वो तो ठीक है, लेकिन हमें और सेल्स जनरेट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए हमारे पास टूल्स है, जहाँ लीड जनरेशन, मार्केटिंग एंड CRM लीड मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर एक अच्छा खासा ऑफर वहाँ पर भी है इस महीने के लिए। तो ये काफी चीजें हैं जहाँ पर आप उसको आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ कनेक्ट करके उसके एडवांटेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास काफी एडवांस लेवल पे, काफी कॉम्प्लेक्स सिनारियो में अगर आपके पास बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड वेरियस टाइप ऑफ द ब्रांचेस, सो यहाँ पर आपको SAP बिजनेस वन, हम ERP सॉल्यूशंस में भी है, सबने SAP बिजनेस वन का तो नाम सुना ही होगा। सो वी आर प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन इट इन द SAP बिजनेस वन, तो आप उसके लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो that's it from my side, Anga. Now I think we can move on the wind up the sessions. Okay. Thank you so much for joining us in today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in the next sessions.